Welcome to Fuji classes. Now we read the chapter number 7, Print Culture Modern World. We can't imagine a world without printed matter. Evidence of printed material are available everywhere, like as books, newspapers, journals, etc. In this chapter, we will look the history of print from its beginning, from East Asia to world and in India. It is difficult to imagine world without printed matter. This chapter concerned with rise of print culture in Europe and India, also with impact of spread of print technology on social lives and culture. प्रिंट ने दुनिया पर क्या प्रभाव डाला वो देखेंगे. अब लेते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रिंट कल्चर. हाउ द प्रिंट कल्चर डेवलप. द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स. Earliest print technology developed in China, then Japan, or then Korea. China, 594 AD, books printed with wood blocks. जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं. Chinese according books printed on the one side only on thin porous sheet and stitched on side. Chinese imperial state sponsored large scale printing of textbook. These textbooks were used for preparation for civil services, examination for Chinese bureaucratic system. क्योंकि चाइना में सिविल सर्विसेज सबसे पहले स्टार्ट हुई, इसलिए उनको बहुत सा मटेरियल और क्वेश्चन पेपर्स वगैरह तैयार करने पड़ते थे. तो सबसे पहले प्रिंट स्टार्ट हुआ चाइना में. By 17th century, China had booming urban culture. Print used by merchant to record day-to-day trade-related informations. Reading became a leisure activity, led to printing of fictional narrative, poetry, play, biographies, etc. एक बार प्रिंटिंग शुरू हुई तो उसके बाद बहुत सी तरीके ईजाद हो गए. यहाँ आप पिक्चर में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इन चाइना देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले वेलम, एक एनिमल स्किन को साफ करके उसको लिखने के योग्य बनाया जाता था, और देन पेपर्स पर राइटिंग शुरू हुई. प्रिंट इन जापान. Printing technology introduced in Japan by Buddhist missionaries from China in 768 to 770 AD. Buddhist Diamond Sutra published in 868 AD, oldest Japanese book. Diamond Sutra is the oldest Japanese book. This is first known example of text printed on paper. वेलम से पेपर पर प्रिंटिंग आ चुकी थी और जापान में पहली बार डायमंड सूत्र लिखी गई. लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स विद हैंड प्रिंटेड मटेरियल्स फुल हो गए थे. दिस इंक्लूडेड बुक्स ऑन वुमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेशन, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट, प्रॉपर एटिक्विटी, कुकिंग एंड फेमस टूरिस्ट प्लेसेस. Some pictures are available. Ukiyo print by Kitagawa Utamaru. त्रिपिटक इन कोरिया. ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ होते हैं. विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक. तो ये त्रिपिटक कोरिया के. अब देखते हैं प्रिंट कल्चर इन यूरोप. एशिया से प्रिंट कल्चर यूरोप में कैसे गया. प्रिंट कम्स टू यूरोप. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्को पोलो, जो कि इटालियन एक्सप्लोरर था, returned from China to Europe in 1295 and took knowledge of wood block printing to Europe. मार्को पोलो इटली का नागरिक, जो कि
वर्ल्ड टूर करके आ रहा था, चाइना से आया, और 1295 में वो अपने साथ चाइना का वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी लेकर आया। प्रिंटिंग बिगैन इन इटली एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। शुरुआत हुई इटली में और उसके बाद पूरे यूरोप में फैल गई। वेलम वेलम वॉज द प्रिफर्ड मटेरियल फॉर प्रिंटिंग लग्जरी एडिशन। By early 15th century, wood blocks used widely in Europe and replaced books written by calligraphy. Calligraphy, the art of writing. गुटनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस। यूरोप में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले गुटनबर्ग थे। Who was Gutenberg? Gutenberg was son of merchant. He learned art of polishing stone and had worked in wine and olive presses. He was a master goldsmith and became expert in creating lead molds. और इसीलिए ये वुड ब्लॉक्स के बाद मोल्ड्स से प्रिंटिंग शुरू करने वाले व्यक्ति थे। गुटनबर्ग यूज्ड हिज नॉलेज टू इनोवेट इन प्रिंट टेक्नोलॉजी। नए नए आविष्कार किए इन्होंने। ही यूज्ड ऑलिव प्रेस as a model and used molds for casting metal to make letters. From 1450 to 1550, printing presses were established in most part of Europe. यूरोप के ज़्यादातर भाग में फैलने लगी प्रेस। About 20 million books in second half of the 15th century and 200 million copies in 16th century. आप गुटेनबर्ग की प्रेस देख रहे हैं, गुटेनबर्ग की वर्कशॉप देख रहे हैं। फर्स्ट book was the Bible, printed by the Gutenberg. प्रिंट रिवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट इन यूरोप। एक बार यूरोप में प्रिंट कल्चर आ गया तो उसको तेज़ी से फैलने की वजह से उसको प्रिंट रिवोल्यूशन कहते हैं। तो प्रिंट रिवोल्यूशन के आने का यूरोप की सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले ए न्यू रीडिंग पब्लिक, रीडर्स इंक्रीज हो गए। एमर्जेंस ऑफ ए न्यू रीडिंग पब्लिक एज बुक बिकेम चीपर ड्यू टू प्रिंटिंग। जैसे जैसे प्रिंटिंग में टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ा। कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस विद ईज। एक्सेस टू बुक्स इंक्रीज्ड विच लेड टू इंक्रीज रीडरशिप एंड ए न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश होने लगी, बुक्स की प्रिंट होने लगा, प्रोडक्शन बढ़ने लगा, वैसे वैसे रीडर्स बढ़ने लगे। Literacy level were low till 20th century in Europe. Popular ballad and folk tales were published which could be listened even by illiterate. लेकिन अभी भी कम था, साक्षरता रेट कम था, लेकिन लोग सुना करते थे बैलेड्स को, फोक टेल्स को इकट्ठा होकर। एक व्यक्ति पढ़ता था और दूसरा सुनते थे। दूसरा परिणाम ये हुआ कि रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट। अभी तक चर्च के अगेंस्ट आवाज़ कोई नहीं उठा सकता था, लेकिन क्योंकि लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे बुक्स बढ़ी, बाइबल की बहुत सी प्रतियाँ फैलीं और लोगों ने पढ़ा, तो कुछ लोग चर्च के अगेंस्ट भी उसके मैरिड डिमैरिड खुलकर बोलने लगे, और जिसकी वजह से लोगों में फियर हुआ, चर्च में भी फियर हुआ। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लेड टू क्वेश्चनिंग सम एस्टेब्लिश्ड नोशन ऑफ रिलीजन। जो चर्च ने पहले से नोशन, अपने धार्मिक रूल्स रेगुलेशन सब लगाए हुए थे, उन पर क्वेश्चन मार्क उठाए जाने लगे। दिस वॉज सीन एज चैलेंज एंड डिस्टर्बेंस टू द ओल्ड ऑर्डर बाई ऑर्थोडॉक्स पीपल। इससे जो पुराने ट्रेडिशनल लोग थे उनके लिए चैलेंज हो गया। Martin Luther put up 95 theses against Roman Catholic Church. मार्टिन लूथर जो कि प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन को देने वाले थे, उन्होंने 95 थीसिस अपने चर्च पर चिपका दी कि इसका मुझे कोई जवाब दे दे। प्रोटेस्टेंट रिवोल्यूशन स्टार्टेड क्रिश्चियनिटी बिकॉज ऑफ प्रिंट कल्चर। प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी दो भागों में बट गई, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। प्रिंट एंड डिसेंट स्टार्ट हो गए, प्रिंट की वजह से डिसेंट स्टार्ट हो गए। रोमन चर्च फेल्ट अनकंफर्टेबल बाय न्यू आइडियाज एज दे रेज क्वेश्चन अबाउट एग्जिस्टिंग नॉर्म्स ऑफ फेथ। क्या फेथ?
जैसे चर्च ये कहता था कि पृथ्वी चपटी है, जबकि बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट बोल रहे थे कि गोल है। पहले चर्च ये कहता था कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है, बाद में कुछ साइंटिस्ट कहने लगे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो जैसे जैसे साइंटिस्ट के विचार फैले और लोगों में वाद विवाद का ज्ञान आया और उन्होंने चर्च के अगेंस्ट कुछ क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए। द चर्च ऑल्सो मेंटेन्ड एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1558 ऑनवर्ड्स, और चर्च ने कुछ बुक्स को प्रतिबंधित कर दिया। ये आप मार्टिन लूथर को देख रहे हैं, और मार्टिन लूथर की जो 95 थीसिस जो चर्च पर चिपकाई थी, वो उसकी प्रति आप देख रहे हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पैक्ट हुआ वो था रीडिंग मैनिया। तेज़ी से रीडर्स बढ़े, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गई थी, तो लोगों के पास पैसा भी आ गया था और बुक्स को ख़रीदने का की कैपेसिटी भी हो गई थी, लोगों के पास टाइम भी था। Churches of various denomination set up school in villages. Literacy level increased through 17th-18th century in Europe. By end 18th century, literacy rate was 60 to 80% in various parts of Europe. तो जैसे जैसे रीडर्स बढ़े, लिटरेसी रेट बढ़ा, ऊपर फिर रीडर्स भी बढ़े। हाई लिटरेसी लेवल क्रिएटेड ए रीडिंग मैनिया अमंग द जनरल पब्लिक. Book seller sold books through peddlers who roamed in villages to sell books. अब लोग अपनी बुक्स को साइकिल पे पैदल ले जाने लगे, दूर दराज गाँव में भी बुक्स की पहुंच हो गई। और ये बुक्स जो थी वो कुछ पीरियडिकल्स थी, नॉवेल्स थे, एल्मेनक, चैप बुक्स छोटी छोटी बुक्स जो जेब में भी रख सकते हैं, एक्सेट्रा वर रीड बाय द पीपल. आइडियाज़ ऑफ साइंटिस्ट फिलोसफर्स बिकेम एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल. जो पहले नहीं भी पता चलते थे, वो अब फिलोसफर्स और साइंटिस्ट की जितनी भी खोजें छपती थी, इनोवेशंस छपते थे, वो सब कॉमन पीपल के अप्रोच में हो गए. न्यू आइडियाज़ वर शेयर्ड एंड डिबेटेड. जब न्यू आइडियाज़ आए, शेयर किए गए, तो उस पर डिबेट भी हुई, वाद विवाद भी हुआ. बुक्स वर मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस. केवल अगेंस्ट ही बोलने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए भी बुक्स ने रोल प्ले किया. और इट ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज इन द वर्ल्ड, लिबरेट सोसाइटी फ्रॉम डिस्पोटिज्म एंड ट्राइनिंग. और इस ज्ञान ने लोगों को तानाशाही और एक जो अत्याचारी शासन था राजाओं का, उससे मुक्ति दिलाने का भी काम किया. अब देख रहे हैं हम प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन. सबसे बड़ा इम्पैक्ट यूरोप में जो प्रिंट कल्चर का पड़ा वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन. Some historians are of the view that print culture created conditions which led to French Revolution. कुछ तो यही मानते हैं कि प्रिंट कल्चर की वजह से ही फ्रेंच रिवोल्यूशन आया. Printed popularized ideas of enlightenment thinkers like Voltaire, Rousseau. These thinkers gave critical commentary on tradition, superstition, and despotism. जीन जैक्स रूसो, वॉल्टेयर की पिक्चर आप देख रहे हैं, नैंटन, इन लोगों ने तत्कालीन जो राजा था, जैसे लुई 16 और उस समय के जो मोनार्की था, और जो उस समय चर्च के सुपरस्टिशंस थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई. जैसे कुछ पेपर्स लेके चलते थे पादरी लोग, और उसमें कहा जाता था कि एक अंगीठी में आप इसे डाल दीजिए भर के, तो आपके पाप खत्म हो जाएंगे. तो इस तरह के अंधविश्वासों को दूर करने का काम किया. प्रिंट क्रिएटेड कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट. जनरल पब्लिक बिगेन टू डिस्कस एंड रीएवेल्युएट एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स. फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सभी जो बड़े बड़े सिद्धांत थे, बड़े बड़े विचार थे, ये कॉमन पीपल में फैलने लगे. By 1780s, new emerging literature mocked the royalty and criticized their morality. Print created an image that they indulged in their own pleasure at the expense of common public. लोगों को में ये धारणा बैठने लगी
कि जो बड़े बड़े लोग हैं, राजा हैं या रॉयल फैमिली हैं या बड़े बड़े लॉर्ड्स हैं, ये सब कॉमन पीपल को एक्सप्लॉइट करके आराम कर रहे हैं या लेज़र यूज़ कर रहे हैं। आप ये फ़िलासफ़र्स हैं जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जेन जैक्स रूसो जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा, जॉन लॉक एंड मैकियावेली ने द प्रिंस लिखा। ये बिल ऑफ राइट्स जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पास किया गया, और ये जो फॉल ऑफ बेस्टाइल, किस तरह बेस्टाइल वाज द सिंबल ऑफ रॉयल at the in France at the time of Louis XVI. So fall of Bastille here, French Revolution. Now we see the impact of print culture on women, children and workers. Leap in mass literacy in Europe in 19th century. This included women, children and workers. पहले बच्चों और महिलाओं से थोड़ा सा दूर रखा जाता था और कहा जाता था कि ये इमोशनल होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे प्रिंट कल्चर का इन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा और ये राइटर भी हुई और रीडर भी हुई। बच्चों के लिए भी बुक्स लिखी गई, महिलाओं ने बुक्स लिखी भी और पढ़ी भी। मैनी बुक्स एंड फोक टेल्स वर रिटन इन द एंड प्रिंटेड फॉर चिल्ड्रन। इम्पॉर्टेंट बुक्स वर ट्रेजर आइलैंड बाय रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन and Jungle Book by Rudyard Kipling. Jungle Book is the favorite book of the children. Many women became important as reader and writer also. Some important works by women were Pride and Prejudice by Jane Austen, जिसमें यूरोप में उस समय महिलाओं की मर्यादा के बारे में बताया जाता था, कैसे व्यवहार करना है। लेकिन धीरे धीरे जैन आयर बाय शार्लेट ब्रोंटी, जिन्होंने कि बोल्ड महिलाओं के करेक्टर को दिखाया। लाइब्रेरीज became hub of the activities for white collar workers, artisan and lower middle class people. अब धीरे धीरे लाइब्रेरीज में बुक्स रखी जाने लगी, जो लोग नहीं भी खरीद पाते थे वो लाइब्रेरीज में बैठकर पढ़ सकते थे। इम्पॉर्टेंट वर्क्स फॉर लोअर क्लासेस, मजदूरों के लिए भी बुक्स लिखी गई, लिबरल्स के लिए भी बुक्स लिखी गई, जैसे हार्ड टाइम्स बाय चार्ल्स डिकेंस, ओलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकेंस एंड द मेयर ऑफ कास्टरबिस बाय थॉमस हार्डी, जिसमें उन्होंने अपने एक मैनेजर का करेक्टर बताया है जिसमें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। ये बुक्स आप देख सकते हैं इस समय की। अब देखते हैं कि प्रिंट कल्चर में आगे क्या इनोवेशन हुआ। समय के साथ धीरे धीरे बहुत सी इनोवेशंस हुई, नई नई टेक्नोलॉजी आई, न्यू स्ट्रेटजीज बनी बुक्स के लिखने के लिए भी और बेचने के लिए भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिचर्ड एम हो ऑफ न्यूयॉर्क perfected the power-driven cylindrical press by mid-19th century, which could print 8,000 sheets per hour. Production कई गुना बढ़ गया. Offset press, which could print up to 6 colors at a time, was developed in late 19th century. Electrically operated press used in 20th century accelerated printing process. जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई इसमें तो और तेजी के साथ प्रिंटिंग होने लगा. New strategies were used to sell books, including periodicals. समय समय पर, जैसे साप्ताहिक हैं, डेली हैं, साप्ताहिक हैं, मंथली हैं, एनुअली हैं, या सीरियलाइज्ड इम्पोर्टेंट नॉवल, जैसे कि सीरियल होते हैं टीवी के, ऐसे ही सीरियलाइज्ड एक ही नॉवल को कई सीरियल में प्रिंट करना, जैसे पिकविक पेपर बाय पिकविक क्लब। ये चार्ल्स डिकेंस का फर्स्ट वर्क था, जबकि वो 24 साल के थे। In 1920s, England, popular works were sold in the cheap series called shilling series. बहुत सस्ती बुक्स, शिलिंग पैसा इंग्लैंड का, तो ज़्यादा से ज़्यादा बिक सकें बुक्स तो सस्ती की गई, और इतनी भी की गई कि जिसमें 1 शिलिंग में भी बुक आ जाए। द डस्ट कवर और बुक जैकेट इन 20th सेंचुरी इनोवेशन। 20th सेंचुरी में बुक को सेल करने के लिए
और भी इनोवेशन हुआ, जैसे डस्ट कवर और बुक जैकेट, उसके ऊपर एक कवर लगाना, वो जो कि इलस्ट्रेट होता था, इंफॉर्मेशन उसमें होती थी, अट्रैक्टिव होता था. So apart from protective covering, it was also a sales tools as it had illustration, information about book and writer, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बुक बिक सकें. Cheap paperback edition were brought in Great Depression in 1930. 1930 में ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक संकट आ गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, इसलिए डर फैल गया कि कहीं बुक्स ना बिकें, तो उसको चीप करने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए गए. क्या तरीके? बिकॉज पीपल डिड नॉट हैव एनफ मनी टू बाई ओरिजिनल बुक्स, तो अब क्या किया गया, सो बुक्स वर रिलीज बाई पब्लिशर इन लो कॉस्ट. वो लो कॉस्ट कैसे आएगी? फॉर्मेट यूजिंग लो कॉस्ट पेपर, ग्लू बाइंडिंग इंस्टेड ऑफ स्टेपलिंग एंड सीविंग, उसमें खर्चा ज़्यादा आता था, एंड पेपर कवर इंस्टेड ऑफ हार्ड कवर, तो उससे सस्ती हो जाती थी बुक और वो कंटिन्यूस बिकते रहे. आप ये शीलिंग सीरीज देख रहे हैं उस समय की, पेपर बैक या हार्ड कवर बुक देख रहे हैं, और नीचे पिकविक पेपर्स भी देख रहे हैं. अब तक हमने देखा यूरोप में प्रिंटिंग रिवोल्यूशन. नाउ वी सी द प्रिंटिंग इन इंडिया. तो इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट. प्रिंट से पहले जो भारत में बुक्स होती थी उनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते थे. मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट. मैन्यूस्क्रिप्ट्स हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तकें. इंडिया हैड ए वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन संस्कृत, अरबिक, पर्शियन एज वेल एज वेरियस वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस. भारत में बहुत सी भाषाओं में मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी गई, हस्तलिपियाँ लिखी गई. इट वॉज रिटन ऑन द पाम लीव्स, भोजपत्र जिनको हम बोलते थे. भोजपत्र पे सबसे पुरानी बुक्स लिखी गई, जो कि आगे चलकर लेदर पे भी लिखी गई. इट कंटिन्यूड टिल 19th सेंचुरी, और लगभग 19th सेंचुरी तक चलता भी रहा. इवन टुडे 40,000 palm leaves manuscripts are preserved in a museum at Bhubaneswar in Odisha. One of the oldest surviving manuscripts on palm leaves in Parameshwar Tantra is Shiv Siddhant text of Hinduism. आज भी शिव सिद्धांत जो है वो संस्कृत भाषा का मैन्यूस्क्रिप्ट्स आज भी है. इट वॉज रिटन इन 9th century AD. However, these manuscripts were not durable, क्योंकि ये जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाती थी, एंड कुड नॉट बी प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर. ज़्यादा तेज़ी से लिख भी नहीं सकते थे, ज़्यादा तेज़ी से फैल भी नहीं सकती थी. सो दे वर ऑल्सो नॉट इजीली एक्सेसिबल बाई जनरल पब्लिक. आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी. वी सी द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन इंडिया. गीत गोविंद बाय जयदेव, नीचे ऋग्वेदा के को दिखाया गया है, एंड साइड में मुगल मैन्यूस्क्रिप्ट्स. अब देखते हैं कि भारत में प्रिंट आया कैसे. प्रिंट कम्स टू इंडिया. तो सबसे पहले भारत में प्रिंट लाने वाले थे ब्रिटिशर्स. प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा with Portuguese, with the coming of Portuguese missionaries in mid-16th century. From 1780, James Augustus Hickey began to edit the Bengal Gazette. सबसे पहला जो न्यूज़पेपर था वो जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा बंगाल गज़ट शुरू किया गया. ए वीकली मैगजीन. इट वाज प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज. वॉरेन हेस्टिंग, जो उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, एनकरेज्ड हिम टू पब्लिश न्यूज़पेपर एंड अदर इंफॉर्मेशंस, ताकि जो सरकार की इंफॉर्मेशंस हैं वो लोगों तक जा सकें और लोगों की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक आ सके. फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर बाय इंडियन वाज बंगाल गज़ट बाय गंगाधर भट्टाचार्य. अब भारत में प्रिंट कल्चर आने का प्रभाव हुआ
कि रिलीजियस रिफॉर्म्स शुरू हुए और यहाँ पर भी पब्लिक डिबेट्स होनी शुरू हुई। जैसे जैसे लोगों के पास विद्वानों के विचार पहुँचे, वाद विवाद शुरू हुआ और कुछ रिलीजियस रिफॉर्म्स भी हुए। In early 19th century, there were intense debate around religious issues. For example, Raja Ram Mohan Roy, जो कि आप देख भी रहे हैं, published the Samvad Comedy from 1821. Devband Seminary, founded in 1867, published thousands of fatwas for Muslim community. The Ramcharitmanas of Tulsidas, a 16th century text, came out of Calcutta in 1810. In 1880, Naval Kishore Press, बहुत famous press थी, and Shri Venkateshwar Press were set up, जिन्होंने बहुत प्रचार और प्रसार किया. Newspaper conveyed news from one place to another, creating pan-Indian identities. भारत में भी अब new forms of publication आई. What are the new forms of publications? New forms of reading like essay, lyrics, short stories, etc. entered into the world of reading in India. By end of 19th century, visual images could be easily reproduced. Raja Ravi Verma, बहुत बड़े painter India के, he produced images for mass circulation. He is the first artist to use oil painting on the subject of Indian mythology. हिंदू देवी देवताओं के जितने भी आप कैलेंडर पे पिक्चर्स देखते हैं वो उन्हीं के द्वारा पेंट की गई. He painted many portraits of both Indian and British subject. By 1870s, caricatures and cartoons also came into picture. K.S. Pillai, known as Shankar, was the father of political cartooning in India. Second, R.K. Lakshman, the first Indian cartoonist, started his series You Said It in Times of India in 1951. These are the paintings by Raja Ravi Verma. Beautiful paintings by Raja Ravi Verma. Now we see the impact of print culture on women and lower classes in India. Liberal families wanted education for women, but conservative were opposed to it. अभी भी भारत में महिलाओं की जो साक्षरता दर थी वो बहुत कम थी. केवल बड़े बड़े घरानों की महिलाएं ही पढ़ पाती थीं. In East Bengal, Raso Sundari Devi was a Bengali writer who wrote her autobiography named Amar Jivan in Bengali language. Kailash Bhashini Devi was another important woman writer in Bengali. इन लोगों ने छुप छुप के लिखना शुरू किया. In Bengal, Batla, this is the central Calcutta area, was devoted to printing popular books which were taken by peddlers to houses for women readers. In Maharashtra, Tarabai Shinde and Pandit Ramabai were popular writers. In Punjab, Rama Chatta published a fast-seller book, Stri Dharma Vichar. Very cheap small books were published in 19th century, like Gulamgiri by Jyotiba Phule और छोटे और बड़े का सवाल by Kashi Baba and सच्ची कहानियाँ popular among poors. These are the pictures of Rasha Sundari Devi and Tarabai Shinde. At last, we see the print and censorship. 20th century तक आते आते प्रिंट ने न केवल पूरी दुनिया बल्कि भारत में भी खलबली पैदा कर दी थी. ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको क्लोजली वॉच कर रही थी क्योंकि बहुत सी चीज़ें ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए भी डेंजरस थी. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंसरशिप स्टार्ट की. सेंसरशिप मीन्स
कोई भी न्यूज़ या कोई भी प्रिंट बिना गवर्नमेंट की इजाज़त के नहीं होगा। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी। Till 1798, East India Company was not concerned with censorship, but 1820 Calcutta Supreme Court passed certain rules regarding publication. पहली बार 1820 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स बनाए। आफ्टर 1857, जो कि इंडिया में फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल है, उसको देखते हुए फ्रीडम ऑफ प्रेस वॉज रेगुलेटेड। ब्रिटिशर्स डर गए क्योंकि इतनी बड़ी क्रांति थी कि जिसको कंट्रोल करने में काफ़ी परिश्रम लगाना पड़ा। सो ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए इन 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जो कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती थी, उनके लिए एक एक्ट पास हुआ जिसमें which empowered magistrate and police to confiscate any objectionable printed material। अगर कोई भी किसी भी तरह का सरकार के विरुद्ध कोई मटेरियल है तो वो उसको बैन कर सकते हैं, रोक सकते हैं छपने से। Despite repressive measures, nationalist newspaper grew in number in all parts of the India। लेकिन उसके बावजूद भी जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने न्यूज़पेपर में अपनी राष्ट्रवादी भावनाओं को लगातार लिखना जारी रखा, जैसे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी और महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया। आशा है कि आपको इससे हेल्प मिली होगी। थैंक यू।